Sir, after MLA जीता तो this everyone is saying कि ये जो रीमा विलेज का ये जो ब्रिज है ये आपका दिल का बहुत क्लोज है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने दिया है, तो आप बता सकते हैं why is this project so special to you and to you and your people also? Thank you. See, as I said in my speech also, that I am an MLA of the constituency, and obviously there will be issues which needs to be tackled or which needs to be sorted out by me. But this bridge was, in fact, very important. It was the most major task. As I said, you must have seen the documentary also, because of the issues involved here. Because it had made national headlines, it had made national news. So and in real sense, the villagers were really having a very tough time, particularly in relation to medical patients, students. They could not cross this river to go to the school on the other bank. So this was a real need, and it was a national issue. And on top of that, this issue, this promise was made many times, but it had not materialized. So it was a challenge for me that I somehow during my time the bridge is constructed, and I am very happy today that I have been able to accomplish that. And as I said, it would not have been possible without the blessings of today's chief guest, our Honorable Advisor PWD, Honorable MLA Dirang, Sri Purpa Sering ji, and under our able leadership of, under the guidance of our Honorable Chief Minister Pema Khandu ji. These two have been my strongest support in getting this bridge where it is today, because the construction of this bridge. And on top of that, there are a few other factors which are involved, which I told you about. For example, here you can see the executive engineer of PWD, and then the one who does the contract work. So it's a chain of events. The sanction is given by the government, which I say is almost 70% of the work done. Still, remaining 30 is there. That is to see the completion of the project. And if you have good connection with the executing agency, if you are in tandem with the contractor, then you see this kind of results, where you accomplish a project in a period before, even before 2 years, whereas the completion date, actually if you go by tender wise, it's only 11 months. So we are 2 years ahead of the completion date, which is very rare in these days, very rare species, as you may say. And I am very much satisfied and very much delighted. So are the Rime denizens, KR Kari Rime Welfare Society, Rime denizens, and Ubu Bango as a whole. Everyone is delighted, and it is a historic day for all of us. So last time CM also visited this area. Five other bridges were promised for the people here. One bridge has already been constructed. Can you tell us the status of other four? Yes, other bridges. There are 5 bridges which were sanctioned, of which this was of the most prime importance, as I have elucidated earlier. And there is one bridge in Angu, which is a longer bridge than this, which is almost 30-40 meters. So that will take some time, maybe 2 years. But that also will be before schedule, before 3 years, that is sure. Then there is another bridge in Doyer, which is around 20-25 meters. So which will be completed, I think, within a year. That is also 3 years time. That will also be completed before completion of 3rd year. And there is another long bridge in Doji area, Hamsik. So that in that bridge, that is going at a very good pace. That is second longest bridge. That will become, the girder has been launched. You know, the girder which has been launched in Hamsik. So that will be completed as soon as possible. I think that also won't take more than a year. And another bridge, which if you go from here, you will see Hu Bridge. So that is also going on. That should also be completed before schedule. So all the bridges are on schedule, on track. This bridge is way beyond the time limit, way above the time limit, way below the time limit, you may say.
that it has been constructed. So because of that, this event today. Other bridges are also progressing before the timeline. It will be constructed before the timeline, but this bridge has been done at a record pace. Sir, Rima Village, while speaking to people here in Rima Village, they are very happy about the bridge, but they said they are also struggling with other things, like they gave you a memorandum about 1.5 kilometer road, 15 kilometer road, and they also cited कि electricity यहाँ पर आना जाना होता है, health care facilities थोड़ा कम है यहाँ पर, तो उसके ऊपर आप एज ए लोकल एमएलए आप इसके ऊपर कैसे देखते हैं, आप क्या बोलना चाहते नहीं, यही मैं बता रहा था। देखिए, सबसे पहले होता है कनेक्टिविटी, और जब कनेक्टिविटी हो जाता है देन नेक्स्ट थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। पहले तो कनेक्टिविटी लाइए, और इलेक्ट्रिसिटी का तो हमारा तो गर्ड लाइन से ही आता है, तो उसका तो ऑल ओवर आलो में जो जैसा है वही है। और बाकी जो स्वास्थ्य सुविधा है, सबसे पहले कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी हो गया है तो अदर जो भी इश्यूज़ होगा डेट ऑल्सो विल बी रिजॉल्व। लेकिन मेन बात था कनेक्ट कराना, और पहले कनेक्शन कम्युनिकेशन को ठीक करना, और कम्युनिकेशन रोड कम्युनिकेशन अभी ब्रिज के द्वारा ठीक हो गया, तो रेस्ट इश्यूज़ विल बी टेकन केयर ऑफ, बट विच विल बी टेकन एट आप जिस स्पीड से अपने हिसाब से चलेगा, और डेट विल ऑल्सो बी टेकन ऑफ सून। सर, यहाँ लोकल एरिया का तो मेरे दोस्त ने पूछ लिया। सर, आप पार्टी प्रवक्ता भी है, ऐसे में हाल ही में हमने देखा मोदी जी वंदे भारत जैसे बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन भी ला रहे हैं देश में, और आज आपने 3 साल के कामों को 11 महीने में ख़त्म करके दिखाया। ये एक रफ्तार को सिम्बलाइज करता है। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मोदी सरकार की तरफ बहुत सारे लांछन लगाते हैं भ्रष्टाचार के। इवन अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी कुछ सेक्शन से लोग जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आप पार्टी प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी किस तरह का पार्टी, और ये रफ्तार जो आप लोगों ने दिखाया है इससे क्या साबित करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं हमेशा जब प्रेस ब्रीफिंग देता हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो डेवलपमेंट है, प्रगति जो है वो पहले नहीं था, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो फ़र्क है वो है रफ्तार में। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ जब चाल जो था, जो प्रगति का, वो कछुआ का चाल था, और अब मोदी जी का सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद, पेमा खांडू जी के सरकार आने के बाद, ये जो प्रगति का रफ्तार है वो बुलेट ट्रेन के स्पीड से बढ़ रहा है। और यही मिसाल जो है आज आप साक्षात यहाँ पे खड़े हैं, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो है, जो पिछले समय जो बहुत स्नेल स्पेस में चल रहा था, उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। और वही रास्ता आज हमारे चीफ गेस्ट साहब बता रहे थे कि पहले हम आलो से जब ईटानगर जाते थे कितना समय लगता था, आज आप देखिए कितना समय लग रहा है। और बाकी जगह में भी ऐसा है, तो ईस्टर्न साइड में भी ऑल ओवर अरुणाचल इस प्रकार डेवलप, और भारतवर्ष में भी वही डेवलपमेंट का रफ्तार है। तो फ़र्क रफ्तार में है, और यही जो सिलसिला है, यही हम कोशिश करेंगे कि यही सिलसिला रखें, और देशवासियों का जैसे हम मोदी जी दिल जीतते आ रहे हैं उसी प्रकार जीतने का चेष्टा करते रहेंगे, यही कहना चाहेंगे। सर, रीमा गांव के वर्षों का सपना आपने आते ही पूरा कर दिया, आप क्या उम्मीद रखते हैं बदले में, किस तरह से आपको याद करेंगे लोग आने वाले दिन? देखिए, मुझे किस तरह से याद करेंगे नहीं करेंगे वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ है कि पब्लिक के लिए ये ब्रिज बना, और ये पब्लिक के यातायात के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बना। मेरा योगदान एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा ड्यूटी है इसको करना, और इससे मुझे कोई वाहवाही लूटना है नहीं, मुझे वाह बटोरना नहीं है, मेरा ड्यूटी है। आई हैव डन इट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इसमें मुझे कोई, लेकिन मेरा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों के साथ पहले, कि मीडिया वाले इस कार्यक्रम को करके मीडिया का भी आज फोकस यहाँ पे है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मीडिया वाले आज यहाँ पे है। तो जो मीडिया वाले आज यहाँ पे नहीं है, उन लोगों से मेरा विनती है कि अपील है कि जब आप कुछ इश्यूज़ को उठाते हैं या इश्यूज़ को रेस करते हैं, तो तब आप उधर मीडिया को लेकर चलते हैं, लेकिन जब इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाता है तो इट इज़ योर ड्यूटी टू शो दैट ऑल्सो कि काम बन गया है, काम हो गया है, जो मैंने मुद्दा उठाया था, जो लोगों ने मुद्दा उठाया था, वो साकार हो गया। ये चीज़ को दूसरे मीडिया करना, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मीडिया वाले भी जब कुछ इश्यूज़ को रेस करते हैं, तो जब इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाता है तो वो आके इसको उनको कवरेज करे कि ये चीज़ रिजॉल्व हो गया, बताए लोगों को,
तो ये था। और बाकी मुझे पर्सनल लेवल में ये मेरा ड्यूटी है एज ए पब्लिक सर्वेंट। मैं आज यहाँ से करूँगा, फिर अगला प्रोजेक्ट को कोशिश करूँगा कि वही ऐसा मैं उसी तरह मैं सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करता जाऊँगा, यही मेरा प्रयत्न रहेगा। और जितना हो सकेगा, जैसे मोदी जी देशवासियों का दिल जीतते आ रहे हैं, पेमा खांडू जी अरुणाचल के वासियों का जीतते आ रहे हैं, मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि मैं 30 आलोस के जनता का जो दिल को मैं जीतता रहूँ। सर, लोकल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा बात हो गया। आप MLA होने का साथ साथ आप स्टेट का बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी है। और हाल ही में परसों रिसेंटली खांडू साहब के अगेंस्ट में रैली निकल रहा है, इसमें सर आपका पार्टी का तरफ से क्या कहना है? रेजिग्नेशन का डिमांड मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेस ब्रीफिंग में दे चुका हूँ और मैंने बताया था कि इस इशू में मेरा क्या है, मेरा पार्टी का। मैंने उसमें बताया था क्लियरली कि देखिए, एक लीगल मैक्सिम है कि ए पर्सन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। आप उसको किसी को, ये लीगल मैक्सिम है, किसी को गुनहगार ठहराने, आप किसी को गुनहगार ठहरा नहीं सकते हैं बिना सबूत के, बिना लीगल मैक्सिम है कि पहले कोई भी आदमी उसको इनोसेंट माना जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया चलेगा, अदालती प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद अदालत जो है आपको जब गुनहगार ठहराएगी तब आप गुनहगार साबित होंगे, लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले आपको इनोसेंट माना जाता है। ये कानूनी लीगल मैक्सिम है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज लीगल मैक्सिम। तो पेमा खांडू जी का तो अभी मैं जैसे बताया, अदालती कार्रवाई तो शुरू ही नहीं हुआ। दिस इज जस्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि रेजिग्नेशन बोल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दम नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे विरोधी दल जो है कुछ उस दिन भी बोल रहे थे इस विषय में, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और अभी कानूनी प्रक्रिया या अदालती कार्रवाई शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक लंबा लिस्ट है। आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी होने के बाद इंक्वायरी में कुछ मिलेगा प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टि, तब आप FIR लॉन्च करते हैं। फिर FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में भी चलेगा। फिर उसके बाद चार्जशीट बनता है, फिर चार्जशीट को कोर्ट कंसिडरेशन ऑफ चार्जशीट होता है। फिर उसके बाद आप अपना रिप्लाई देते हैं। फिर उसके बाद कानून अदालती कार्रवाई चलता है, हियरिंग चलता है, ट्रायल चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद अंत में उस प्रक्रिया में आपको गुनहगार या गुनहगार नहीं तब साबित होता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया एक लंबा प्रक्रिया है और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा कोई प्रथा भी नहीं है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है। आप जैसे देख लीजिए हमारे मनमोहन सिंह जी, मैं उस दिन भी बताया था, मनमोहन सिंह जी को देखिए वो क्लीन इंसान में माने जाते हैं। उसके साथ भी कुछ चीज़ में आपका 2G में, शायद 2G या किसी में था, तो उन्होंने भी कभी रिजिग्नेशन नहीं दिया। आपका ऐसे कई सैकड़ों, नरसिम्हा राव का भी JMM का केस था। तो ऐसे केस, क्योंकि देखिए आप राजनीति में होगा तो राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। तो हर आरोप प्रत्यारोप पे आप रिजिग्नेशन देने लगेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा, है कि नहीं? देश तो चलना पड़ेगा, राज्य तो चलना पड़ेगा। तो अभी अदालती कार्रवाई शुरू ही नहीं हुआ। तो मैं जो भी हमारे विरोधी दल इस चीज़ को, मुद्दा को उठा रहे हैं, मैं सबसे यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप संयम बरते, आप लोग हैव पेशेंस। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो, फैक्ट फाइंडिंग हो, उसके बाद FIR, उसके बाद इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसी के बाद ही क्या है क्या नहीं है वो अंत में मालूम चलेगा। और एक तरफ से जैसे पेमा खांडू सर खुद बोल रहे हैं, ही इज़ वेलकमिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन को वेलकम कर रहे हैं कि मतलब वो उनके तरफ से वो जितना कोऑपरेशन करना है वो करेंगे। और जैसे कि CBI को सब जानते हैं, इट इज़ ए इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो किसी के दबाव में तो वो काम करेगा नहीं है। तो इट इज़ उनका कोई कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट का तो उनको कोई कंट्रोल रहता नहीं है, इट्स सेंट्रल एजेंसी। तो कहाँ से उनको, मुझे तो ये जो टेंडर रेजिग्नेशन वाला जो बात है, मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई दम नज़र नहीं आता है। मेरे ख्याल से पीपल शुड, जो हमारे विरोधी दल है, इस चीज़ को और ना उठाए, क्योंकि जिस चीज़ में होने का संभावना हो उस चीज़ को, उस मुद्दा को उठाइए। जिस चीज़ का अभी पिछले कितने सालों से प्रथा है नहीं, और जो चीज़ का होने का संभावना ही ना हो, उस चीज़ को बार बार बोल के उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया, एक लंबा प्रक्रिया। और जैसे मैंने बताया, ये जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो मेरे ख्याल से इसमें तो
रेजिग्नेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जैसे मैंने बताया, ए पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट बिफोर ही कैन बी प्रोनाउंस्ड गिल्टी, तो प्रक्रिया चलने दीजिए।